A very good morning to one and all. I am Amrita Pahadia, President and Convener, IIC Institute Innovation Council. It's my pleasure and privilege to welcome you all in the Impact Lecture Series IIC 4.0 in association with MOE Innovation Cell, that is Ministry of Education Innovation Cell, AICTE, which is conducting an online phase mode 2. And this online lecture series is being conducted in RKDF College of Tech Engineering, Bhopal, Madhya Pradesh. So we are having an eminent personality, entrepreneur, startup founder, Mr. Kavindra Raghuvanshi. He is CEO of the Kabadi Wala. So today he will cover his topic, My Story, Motivational Session by Successful Entrepreneur, Startup Founder. Now, I would like to request our Vice Chancellor of Bhabha University, Dr. Manoj Mittal sir, to please welcome our today's guest. Please, sir. Good morning to one and all. On behalf of Bhabha University and RKDF College of Engineering, I welcome Mr. Raghuvanshi, CEO of the Kabadi Wala, entrepreneur. Thank you, sir. This is a great honor for us and for our students to learn an inspirational story and a motivational speech. It gives a lot of benefit and a lot of encouragement to all my students. I again appreciate the efforts put by Dr. Jhala for bringing up these sessions for the upliftment and for encouragement of the students. I once again welcome all the delegates, all the students and faculty members who will be benefited out of your experiences and the way you have conducted and empowered yourself as an entrepreneur. I once again welcome you all. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. So all the participants, we are soon going to start our session, which is being delivered by Mr. Kavindra Raghuvanshi, CEO, the Kabadi Wala. So let us start our session, our Impact Lecture Series, which is being conducted in RKDF College of Engineering, Bhopal, Madhya Pradesh. Please, sir, I request you, you can start your session. Okay. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर है? Yes, sir. Okay. First of all, Vice Chancellor sir, all the dignitaries and all Bhabha team, thank you for inviting me for this lecture. Before going to start my story, just going to introduce our company or our startup, thekabadiwala.com. Basically, thekabadiwala.com is a platform. We are working in the field of waste management. And hello. So we are working in the field of waste management. We are providing solution for individuals, organizations, industries. And sorry to interrupt you, sir, Kavindra sir. I think there is some issue with the light at your side. Your face is not at all visible. Okay, sir, it's fine. Okay. So I'm just starting again. So thank you for all. We are the thekabadiwala.com and we are working in the field of waste management. We work in the field of dry waste management. We are providing solutions to all the individuals, organizations, and industries to manage their waste, the recyclable bill or non-recyclable waste. So हमने जब अपना काम स्टार्ट किया था तो बहुत इनिशियली हमें देखा था कि सोसाइटी में हर फील्ड में टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस आ रहे हैं, बट जो वेस्ट मैनेजमेंट है और जो स्क्रैप की फील्ड है ये पुराने सिस्टम पे ही वर्क कर रही है. सो लोगों को समय के साथ टेक्नोलॉजी के साथ कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी.
लोगों को वेस्ट के बारे में पता नहीं था, उसकी वैल्यू के बारे में पता नहीं था, उसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पर, एनवायरनमेंट पर, लैंड पर, उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। और हमें लगा कि एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर काम कर सकती हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, challenges है एज वेल, बट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। सो वी थॉट, और हमने इस बारे में सोचा और इसको देखा, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से थे, मैं और मेरा को फाउंडर दोनों ही आईटी फील्ड से थे। तो हमें लगा कि हम इसको किस तरीके से इस इन्वायरमेंट को इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके चल सकते हैं। तो इस थॉट के साथ हमने अपना काम स्टार्ट किया। इनिशियली हमने हमने इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तरह ही लॉन्च किया था, एक कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह, पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू, और एक सिंपल वेबसाइट बनाई थी जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल्स अपने स्क्रैप को पिकअप के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। और ये 13-14 की बात है, 2013-14 की। तो सडनली हमने देखा कि भोपाल जैसी सिटी में भी विदाउट किसी मार्केटिंग और के कई लोग सर्च कर रहे हैं, और कई लोग हमें अपने स्क्रैप पिकअप के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो इनिशियल टाइम में 2012-13 में हमें कुछ बहुत स्क्रैप का नॉलेज नहीं था, बट एक प्रॉब्लम डोमेन को आइडेंटिफाई करके हमने एक सॉल्यूशन की तरफ जाने का प्रयास किया था। तो वी वर स्टार्टेड कि चलो इसको करते हैं, मैनेज करते। तो इनिशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी हमारा कोई इतना बहुत बहुत इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर लोगों ने आकर अपना पिकअप रिक्वेस्ट विदाउट किसी मार्केटिंग की शुरू किया। सो हम लोगों ने उन उन रिक्वेस्ट को वन बाय वन पिकअप करना शुरू किया। धीरे 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 देखा कि लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा है इस फील्ड में, लोग इस तरह के सॉल्यूशंस को अडॉप्ट कर रहे हैं। और जो माउथ पब्लिसिटी थी, जो 1-to-1 पीपल टू पीपल लोगों ने उसको अलग अलग और अलग अपने दूसरे लोगों तक पहुंचाया, वो हमारे लिए एक बड़ा चीज़ था कि हम अगर किसी बड़े मार्केटिंग एफर्ट्स के एक बड़े लेवल तक बहुत सारे कंज्यूमर्स तक कनेक्ट करने लगे। और धीरे धीरे रिसोर्सेस ऐड होते गए। हम लोगों ने इनिशियली छोटे से काम स्टार्ट किया, धीरे 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 हम अपने रिसोर्सेस को बढ़ाते गए। और आज ऑलमोस्ट हम लोग 1 लाख लोगों के साथ काम कर रहे हैं। करीब करीब हमारे पास 130 लोगों का, अभी 130-140 लोगों का डायरेक्ट और स्टाफ है जो हमारे साथ काम कर रहा है। और करीब करीब 200-300 अलग अलग तरीके के से लोग हमसे जुड़े हुए हैं। जैसे कई सारे रैक पिकर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, हम नगर निगम और गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं उनके वेस्ट को मैनेज करने के लिए। सो इनिशियली सिंगल कुछ लोगों से स्टार्ट करके हम वेस्ट को समझते गए, और धीरे धीरे उसमें जो चैलेंजेस थे उनको अडॉप्ट करते गए, उसमें अपनी लर्निंग्स को और स्किल को बढ़ाते गए। और छोटे से लेके हम उसको अभी इस रूप में लेके आए। और इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज और बहुत काम बाकी है, क्योंकि जनरली वेस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग अवेयर नहीं रहते हैं। वेस्ट एक तो इकोनॉमिकली तो उसकी एक वैल्यू है ही, बट वो एनवायरनमेंट के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूसरी चीज़ें हैं। हम सब लोग देखते हैं कि हम सब लोग प्लास्टिक के पानी की बोतल को फेंक देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम में से या जितने लोग बैठे हैं वो भी, उनमें से कई लोग की प्रैक्टिस में होगा कि हम लोग को भी कोई सूटेबल स्थान नहीं मिलता तो हम फेंक देते हैं। बट वो प्लास्टिक की बोतल की एक वैल्यू होती है, वो अगर हम उसको कलेक्ट करें और हम कभी भी 1 रुपए के या 50 पैसे के कॉइन को नहीं फेंकेंगे, बट अगर हम कोई वेस्ट है और कोई प्लास्टिक या कोई भी अलग तरीके का वेस्ट है तो हम फेंक देते हैं। सो एक अवेयरनेस का इशू था कि इसको फेंक के ना एक चैनलाइज वे में इसको हैंडल किया जाए, जिससे कि ये रिसाइकलिंग प्रोसेस में जाए। क्योंकि हम एक बहुत ही एक बात है कि हम लोग, हमारा जो देश है वो उसकी नीड और ज़रूरत इतनी है कि हम लोग लाखों हज़ारों टन प्लास्टिक को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। और हम अपने प्लास्टिक को लैंडफिल में डालते हैं, जला देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है और दूसरी कई सारी इश्यूज और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हमारा लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ रहे हैं। और हम दूसरी कंट्रीज से उसी प्लास्टिक को
अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, अपने अपने कंज्यूमर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए, डेली यूज में जो हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उस नीड को फुलफिल करने के लिए हम बहुत सारा प्लास्टिक को इंपोर्ट करते हैं। सो और अगर प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं होगा ना, तो प्लास्टिक का जो भी आज आप प्लास्टिक की चीज यूज कर रहे हो, वो आने वाले टाइम में अगर ये प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो तो 4 टाइम्स इसके रेट हो जाए। मतलब जो आप प्लास्टिक का बाल्टी और मग आप खरीद रहे हो, अगर ये रिसाइकल प्लास्टिक ना हो तो ये फोर इसका इसका कीमत एटलीस्ट 4 टाइम्स हो जाएगा। और आपके आसपास इतना प्लास्टिक दिखेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि अगर ये रिसाइकलिंग प्रोसेस एक दिन भी ना हो तो कितना प्लास्टिक पूरे के पूरे जगह पर कलेक्ट हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉपर इसका हैंडलिंग हो, प्रॉपर रिसाइकलिंग हो। अभी गवर्नमेंट और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत फोकस कर रही हैं कि प्लास्टिक का को चैनलाइज किया जा सके और प्लास्टिक पूरे प्रोसेस में आके रिसाइकल हो सके। वन टाइम यूज प्लास्टिक ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की तरफ से बैन हो चुका है कि वन टाइम यूज प्लास्टिक नहीं करना है। और जो सिंगल लेयर प्लास्टिक की है, जो कम माइक्रोन के प्लास्टिक है, उस पर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। उसका रीज़न यही था कि वो रिसाइकलिंग प्रोसेस में आना बहुत क्रिटिकल होता है। और जो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है उसको चैनलाइज किया जा सकता है अलग अलग तरीकों से। जैसे हम डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ काम कर रहे हैं कि कोई भी कस्टमर अपने अपने घर में, अपने प्रीमाइसिस में प्लास्टिक को और वेट वेस्ट को, जनरली सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वेट वेस्ट को हम क्या करते हैं, हम सारे वेस्ट को मिक्स करते हैं। जो भी हमारे घर से निकल रहा है, वो प्लास्टिक वेस्ट है, वो किचन वेस्ट है, वो हमारा फूड है जो हम खाने के बाद बच जाता है, वो सबको एक साथ एक डस्टबिन में डाल देते हैं, जो कि बहुत ही अनहेल्दी और अननेचुरल प्रोसेस है। सो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने बहुत बहुत फोकस किया है कि आप 2 डस्टबिन रखें घर में, ड्राई के लिए अलग रखें, वेट के लिए अलग रखें, हैजार्डियस के लिए अलग रखें। उसका रीज़न यही होता है, उसका वो रीज़न यही है कि जब आप वेट वेस्ट को और ड्राई वेस्ट को अलग अलग रखेंगे तो ड्राई वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोसेस में आ जाएगा और वेट वेस्ट को कंपोज वेट वेस्ट कंपोज हो जाता है तो कंपोजिंग के प्रोसेस में आ जाएगा, जिससे कि वो प्रॉपर खाद बन जाएगा और जमीन के लिए उपयोगी होगा। बट जैसे ही वेट वेस्ट के साथ प्लास्टिक वेस्ट मिक्स होता है, वेट वेस्ट का भी कंपोजिशन नहीं हो पाता है और वो प्लास्टिक वेस्ट तो कभी खत्म होता ही नहीं। सो इस रीजन की वजह से गवर्नमेंट और सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने अलग अलग नियम्स बनाए हैं। जितनी भी कंपनीज है उनको भी बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप जितना भी प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल मार्केट में भेज रहे हो, आपको कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही है। और एक कंज्यूमर एंड पे भी जरूरी है कि एक अवेयरनेस आए। तो ये ही हमारा स्टार्टअप का एक उद्देश्य था ओवरऑल, कि हम इस सेक्टर में काम करें जिससे कि एक सोशलिज्म है, सोशली भी हम काम कर सके, प्लस इसमें एक बहुत बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको प्रॉफिटेबल और एक सस्टेनेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। सो इस थॉट के साथ हमने काम स्टार्ट किया था। बहुत अर्ली चैलेंजेस थे जो हर स्टार्टअप में या हर एंटरप्रेन्योर्स को आते हैं। वो सारे हमें चैलेंजेस आए थे क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से थे, हमें आईटी और सबका बहुत नॉलेज था, लेकिन वेस्ट का कैसे सेग्रीगेट करना है, कितने टाइप का होता है, वैल्यू साइड क्या होता है, चेन क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, धीरे धीरे उस चीज़ की लर्निंग करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। इनिशियली जब हमने काम किया था तो टेक्नोलॉजी या वेबसाइट बहुत सिंपल थी। धीरे धीरे हम अपनी नीड और अपने डोमेन के हिसाब से उसको वेबसाइट को कन्वर्ट किया। आज हम हमारी एक करीब करीब 15 लोगों की एक आईटी टीम है जो डेडिकेटेडली हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड को फुलफिल करती है और देखती है कि हमें एंड टाइम पे हमारे एंड यूजर के लेवल पे या हमारे पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो भी हमें रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो, ताकि हम ये पूरे के पूरे सेगमेंट को टेक्नोलॉजी की हेल्प से अचीव कर पाए। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा और बहुत मेजर एंगल टेक्नोलॉजी का है और हमने उसी चीज़ पर फोकस किया कि जो भी इसकी हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम है, जो भी इसको स्केल करने के इशू आ रहा है, उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू टैकल किया जाए, टेक्नोलॉजी से उनको हैंडल किया जाए। सो ये एक वेस्ट के बारे में एक ओवरऑल अवेयरनेस थी कि एक वेस्ट कैसे काम करता है, कैसे होता है।
हम लोगों ने कोई बहुत मसाला लगा के मैं अपनी स्टोरी नहीं बता पाऊंगा। मैं किसी भी जो भी लोग सुन रहे हैं जिनको एंटरप्रेन्योर बनने में इंटरेस्ट है, मैं उनको बोलूंगा कि जर्नी टफ होती है, लेकिन आपको मजा आता है इस टफनेस के साथ भी। आपको हर स्टेज पे आपको अगर एंजॉय करते हो, अगर आपको मजा आए तो ही इसमें आगे जाना चाहिए। सो जब हमने काम स्टार्ट किया था तो बहुत अर्ली था, धीरे धीरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसा नहीं कि हमें जब फंड्स मिले थे, जब हमें फंडिंग हुई थी तो हमने उनको वेस्ट किया या अन अनयूटिलाइज किया। हमने पिछले 2 साल में 2 कोविड वेव को भी झेला है। और वो बहुत टफ टाइम था हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा बिजनेस है, ये पूरा का पूरा ग्राउंड वर्क पे डिपेंड करता है। हमारे व्हीकल्स, हमारे एम्प्लॉयज, हमारी गाड़ियाँ, वो सब ने पूरा पूरा पिछले 2 साल में 2 क्वार्टर्स में हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। बट टीम अच्छी थी, हम लोगों ने सबने मिलके काम किया, मेहनत किया और उस टफ टाइम को हैंडल किया, और उस कोविड के बाद हम और तेजी के साथ जंप किया। सो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मैं उनको यही बताऊंगा। इनिशियली मैं चाहूंगा कि क्वेश्चनियर लंबा चले, कि जब भी आप कोई स्टार्टअप का प्लान करते हो या आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जाना चाहते हो, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका सेल्फ विजन और आपका सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी होता है। मतलब बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी आपका विजन और आपका बिलीव होता है। विजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म गोल के साथ प्लान कर रहे हो तो वो बहुत टेम्पररी और बहुत कम टाइम के लिए होता है। जैसे ही वो आपका शॉर्ट टर्म गोल अचीव होता है या नहीं होता है, वो आपके लिए एक सेटबैक होता है और आप वापस किसी और चीज़ के लिए सोचने लगते हो। दूसरा होता है कि एक बिलीव होता है कि जैसे हमने ये काम शुरू किया था तो हमारे साथ कई लोगों ने काम शुरू किया। जब किसी ने देखा कि वेबसाइट ऐसे काम कर सकती हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो कई लोगों ने शुरू किया। और अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर को भी मैं देखता हूँ कि वो उनका आइडिया कभी शेयर नहीं करते, बोलते हम आइडिया शेयर करेंगे तो ये कोई चोरी कर लेगा। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि यार आइडिया चोरी हो सकता है, वो तो जिस दिन लॉन्च करोगे उस दिन कोई भी कर सकता है, बट जो बिलीव होता है ना, वो हर कोई नहीं ला सकता, वो चोरी नहीं हो सकता, वो सेल्फ जनरेटेड होता है। सो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि अर्ली स्टेज में एक अच्छे विजन के साथ काम करें। आपको अपना एक बिलीव क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। सो आपको सोचना आपको कैसे काम करना है। चूंकि मैं टीचर रहा हूँ, मैंने अपनी अभी तक के करियर में मेरा जो सबसे लंबा एक्सपीरियंस रहा है वो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो जब मैं टीचर था तभी मुझे मुझे लगता था कि कुछ और करना चाहिए। टीचर टीचिंग मुझे बहुत अच्छा प्रोफेशन लगता था और मैंने उसे कई साल तक एंजॉय किया, बट मुझे लगा कि मुझे अब किसी और फील्ड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हम लोगों ने इनिशियली वेब डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया। हम लोग 2005-6 में उसको एक टीम बना के काम शुरू किया, पर अनफॉर्चुनेटली 2009-10 तक आते आते वो काम हमारा किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट हमने काम बहुत अच्छा किया था और उस काम ने, उस हार्डवर्क ने मुझे सिखाया कि टीम को टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी का एक बहुत नॉलेज दिया, टीम के साथ काम करने का अनुभव दिया। तो वो उस टाइम पे काम नहीं आया, बट जब हमने दूसरा स्टार्टअप किया तो वो सारी की सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं हमें हमें उसने स्ट्रेंथन दिया। सो मैं आज के जो भी इसको सुन रहे हैं मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि जब भी आप कोई थॉट लेके चलते हो तो उसको पहले ही सोच लो अच्छे से। अदरवाइज क्या होता है कि हम अपने आइडियाज को बार बार चेंज करते हैं तो हमारा टाइम बहुत खराब होता है। और मुझे लगता है कि अगर हम किसी एक आइडिया पे कॉन्सेंट्रेट होकर काम करते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि हम उसकी जो लर्निंग्स होती है उनको यूज़ करते हैं। कई लोगों से मैं मिलता हूँ, कई लोग बात करने आते हैं तो वो बोलते हैं कि हम लोगों ने ये काम शुरू किया था फिर बंद कर दिया, फिर ये किया फिर बंद कर दिया। सो मेरा ये होता है कि अगर आप एक काम कर रहे हो
तो उसको पहले ही सोच लो कि उसमें क्या है, क्योंकि उसकी जो फेलियर है ना वही आपके लिए लर्निंग है उसी काम को और अच्छा करने के लिए। अगर आप बार बार कंसेप्ट को, बार बार थॉट को और बार बार आइडियाज को चेंज करेंगे तो आपका टाइम खराब होगा और कभी आप उसकी लर्निंग को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। सो आज के लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर की तरफ जाना चाह रहे हैं, सो उनको ये ध्यान देना होगा कि ये जर्नी थोड़ी टफ होती है। अ, आपको बिलीव, आपको विजन के साथ काम करना पड़ेगा। आपको अपने छोटे छोटे मिशंस बनाने पड़ेंगे और मिशंस को कंप्लीट करते हुए अपने विजन की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे केस में और सबके केस में सब चीज, ये सारी चीजें कॉमन होती हैं। जितने भी स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर को आप आज देख रहे हो जो सक्सेसफुल है या जो आने वाले टाइम में सक्सेसफुल होंगे, उनके अंदर यही चीज होती है कि वो हार्ड वर्क अपना करते हैं, बिलीव करते हैं और विजन की तरफ बहुत कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। हम लोग अभी भी हम मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत हम 4 साल 5 साल पहले करते थे अभी हमें उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। अ, बस फर्क ये है कि 5 साल पहले हम 5 लोगों के साथ काम कर रहे थे और 5 साल बाद आज हम 200 लोगों के साथ, 150 लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो चीज़ें वही हैं, मेहनत वही है, बट सिचुएशंस बदल गई और ये आने वाले टाइम में ऐसे ही बदलेगी। तो मैं, मुझे लगता है ज़्यादा टाइम मुझे लोगों के, अगर मुझे कोई क्वेश्चन करना चाहते तो उसमें देना ज़्यादा बेटर समझता हूँ। अ, तो इसको मैं यहीं पर एंड करता हूँ और अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आगे बढ़ते हैं। हेलो। Hello. हाँ Yes, sir. Thank you so much, sir. I request participants, if you are having any query, any doubts, you can feel free to ask to Kavindra sir. Students attending the lecture, if you are having any query, you can ask. Hello. जी, हेलो बोलिए। Sir, I have a doubt. Hello. हाँ हाँ, आप बोलिए, मैं सुन पा रहा सर, हूँ। जो आईटी इंडस्ट्री में आजकल क्या है, कंप्यूटर वेस्ट बहुत ज्यादा वेस्ट वगैरह निकल रहा है। तो इसमें से रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह की एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या विजन है सर के, मतलब हम उसे इंडस्ट्री में दोबारा यूज कर सकते हैं? सत्यार्थ, वो जितना भी आईटी वेस्ट होता है वो जनरली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में आता है, उसे ई वेस्ट बोलते हैं। सो बहुत सारी कंपनीज अभी इंडिया में भी और ओवरसीज भी हैं जो ई वेस्ट के मटेरियल रिकवरी पे काम कर रही हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसमें बहुत ऐसे बहुत सारे मेटल्स भी निकलते हैं वहाँ पर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे मटेरियल्स भी निकलते हैं। और दूसरी तरफ इसके जो कुछ सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे मरकरी और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत हार्मफुल भी होते हैं। सो ई वेस्ट को स्ट्रीमलाइन और प्रोसेस करने के लिए अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज और बहुत सारी मशीनरीज आ चुकी हैं, बट उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग आ, उनका बहुत बड़े लेवल पे उनका यूज़ अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। बट फिर भी स्टिल इंडिया में करीब करीब अभी भी 8 से 10 ऐसी यूनिट हैं जो ई वेस्ट के एक्सट्रैक्शन पे काम कर रही हैं। कबाड़ी वाला इस लीड में है सर क्या? हाँ, दा कबाड़ी वाला अभी हम लोग अभी प्लास्टिक वेस्ट में और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में काम कर रहे हैं। सो अभी हम एज ऑफ नाउ हम अभी कलेक्शन पार्ट में ही है अपनी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। हमने रिसाइकलर्स के साथ टाई अप किया हुआ है, बट इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि हम रिसाइकलिंग की तरफ जाएंगे ई वेस्ट के। Any other? हेलो जी सर, मैं डॉक्टर अशोक कुमार झाला। जी सर। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक एंटरप्रेनर को किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? स्टार्टअप अगर स्टार्ट करना कोई चाह रहा है तो उसको बेसिक किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए पहले? सर सबसे पहले तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कई बार मैंने एक बहुत कॉमन सिनेरियो देखा है बच्चों में कि वो आइडिया को ना ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कई बार डर के मारे कि कोई इसको कॉपी ना कर ले।
सो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जरूरी है कि हम जो हमारा आइडिया है ना वो मैच्योर होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा ना, अगर वो मैच्योर नहीं होगा तो पता चला हमने एक साल खत्म की, एक साल खराब किया और एक साल बाद ही इस अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचे कि यार ये ना सस्टेनेबल प्लान नहीं है। सो मुझे लगता है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को, स्टार्टअप्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने आइडिया को डिस्कस करना चाहिए लॉन्चिंग के पहले। दूसरा होता है टीम सिलेक्शन, कि हमारे टीम में कई बार हम देखते हैं कि ऐसे चार दोस्त मिलते हैं जिनकी बनती है, वो एक साथ काम शुरू कर देते हैं। बट उनमें से जैसे ही थर्ड ईयर का टाइम आता है, फाइनल ईयर का टाइम आता है, और जब जॉब्स की कैंपस सिलेक्शन होती है तो बहुत सारे लोग मूव कर जाती हैं। सो ये जरूरी है कि आपकी टीम, जरूरी नहीं कि वो आपको फ्रेंड हो, लेकिन आप अगर आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो उस विजन को आगे लेके जा सकती है। क्योंकि विजन, मैंने अभी आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि विजन बहुत जरूरी होता है एक स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर के लिए, काम शुरू करने के लिए। तो उसे सोचना पड़ेगा कि उसके जो विजन किसके, और उसके विजन के साथ किस किस का विजन मैच कर रहा है। दूसरा, आइडिया मैच्योर होना जरूरी है। और तीसरा जरूरी है कि आप बहुत बड़ा, शुरू में ही बहुत बड़ा प्लान करके ना सोचे। मैं अभी कई सारे बच्चे आते हैं, वो कोई प्लान होता है तो बोलते हैं हम आईटी में ऐप बना लेंगे, वेबसाइट बना लेंगे, इतना खर्चा करेंगे। मैं बोलता हूँ इसको पहले ना, अगर आपकी आइडिया में और में अगर टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़रूरी नहीं है, तो आप जो उसका मेन पार्ट है उस पर फोकस करें। कि जैसे कई लोग आते हैं कि मैं बोलता हूँ यार 1,000 कंज्यूमर्स कर लो। कई लोग किसी प्रोडक्ट को लेके आते हैं तो बोलता हूँ 100 कस्टमर करो, फिर टेक्नोलॉजी पे काम करो। पहले अगर आपका प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है तो आप टेक्नोलॉजी पे फोकस मत करो, प्रोडक्ट पे फोकस करो। सो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनमें अगर एंटरप्रेन्योर कॉन्सेंट्रेट होके आप, क्योंकि बहुत लिमिटेड फंड होता है कई लोगों के पास, तो उस लिमिटेड फंड को सही जगह इस्तेमाल करके कॉन्सेंट्रेट होके अपने आइडिया को अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपने 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 टीचर्स के साथ, और जितने आजकल बहुत सारे इवेंट्स होने लगे हैं जहाँ पर आप अपने आइडिया के साथ अपने आइडिया को पिच कर सकते हो। तो जब आप उन इवेंट्स में जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस के साथ धीरे धीरे, इन सब चीज़ों के साथ पहले शुरू के 5 महीने 6 महीने आप अपने आइडिया को मैच्योर कर सकते हो। देन उसका पायलट आप रन करो। पायलट में आपको जो भी फंड की, बेसिक फंड की नीड है, आप फंड को लगाओ, पायलट रन करो। पायलट को सक्सेसफुल करने के बाद आप उसको फिर एग्रेसिवली मार्केट में लेके जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। Anyone else? Sir, I have one query. Yes, ma'am. Sir, like in your website, whenever the customer reaches at your website, there are so many categories which has been given in that website. So Yeah. how do you segregate the material, and what is the basic purpose after the collection of that scrap? Actually, that is what scrap is, that no? ठीक है। So what is the end result of that, sir? एक्चुअल में क्या होता है ना मैम, वेस्ट पे सबसे मेन जो पार्ट होता है उसका सेग्रीगेशन ही होता है। क्योंकि Yes. क्योंकि जितना भी हम घर से मटेरियल कलेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा आपके घर पे अलग अलग तरीके का प्लास्टिक होता है, पेपर होता है और मेटल होता है। सो ये ऑल जो जितना भी मटेरियल है ये सारा रिसाइकलेबल है, इवन ग्लास भी रिसाइकल होता है। सो जब हम कलेक्ट करते हैं तो इनिशियल लेवल पे हमारा जो पिकअप एग्जीक्यूटिव होता है वो बेसिक लेवल का सॉर्टिंग आपके घर पे ही करता है। पेपर को अलग रखेगा, प्लास्टिक को अलग रखेगा। बट मिक्स प्लास्टिक का कोई यूज नहीं है। अगर आपका प्लास्टिक मिक्स है तो वो रिसाइकलिंग पर्पज में यूज नहीं होता है। तो हमारे वेयर हाउस पे जो सेग्रीगेटर्स होते हैं वो उनके पास स्किल होती है। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लास्टिक में वो एचटी कैटेगरी का है, कि पीपी कैटेगरी का है, कि एलडी कैटेगरी का है, कि पीबीएस है। तो ऐसे करके प्लास्टिक में करीब करीब 20 30 40 कैटेगरीज होती हैं जिनमें मटेरियल को सेग्रीगेट किया जाता है। और जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है ना, वो हमेशा शॉर्टेज ऑफ मटेरियल पे बैठी हुई है, उनको मटेरियल लगातार चाहिए। अभी हमारे देश की बहुत सारी रिसाइकल इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास उनकी कैपेसिटी को रिसाइकलिंग मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। सो एंड यूज रिसाइकलिंग सेग्रीगेशन के बाद मटेरियल को सेल करना स्क्रैप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि कलेक्ट करना और उसको सेग्रीगेट करना।
सो इन दो चीजों को चैनलाइज करना जरूरी है। सेल करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। सो हम लोग जब कलेक्ट करते हैं, फिर हमारा एक वेयर हाउस पे एक पूरा टीम होता है जो मटेरियल को सेग्रीगेट करता है, और टेक्नोलॉजी में हमने उसमें ऑप्शन दिया है कि बिफोर सेग्रीगेशन के बाद, आफ्टर सेग्रीगेशन में किन किन कैटेगरीज में उसको मटेरियल को रखना है, और फिर उस स्टॉक को हम लोग अलग अलग रिसाइकलर को सेल आउट करते हैं। So, sir, is there any particular restriction with the material you are opting, sir? हम लोग जनरली हम हैजार्डियस मटेरियल की तरफ नहीं जाते हैं। सो हैजार्डियस मटेरियल में डील नहीं करते, हम ऑयल में डील नहीं करते हैं। कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम लोग नहीं लेते क्योंकि वो Yes, yes. उनको प्रोसेस करने के लिए, जैसे जैसे आपके Yes. यहाँ पुराने बल्ब और ट्यूबलाइट्स होंगी, उनमें मर्क्यूरी होता है। Yes, sir. तो जनरली उनको हैंडल करने का प्रोसेस अलग होता है। अगर आप उनको ई वेस्ट इतना हार्मफुल है कि अगर आप अपने ई वेस्ट को अगर आप खाली जमीन में डाल देंगे तो उसका एक बड़ा एरिया आने वाले टाइम में बंजर हो जाएगा। एक मोबाइल की सिम भी अगर आप अपने गार्डन में डाल देंगे ना, तो उसके आसपास का बहुत सारा एरिया वो पॉल्यूटेड कर देगा, और उस जमीन को इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड कर देगा कि आने वाले कई साल तक ना वो जमीन पॉल्यूटेड ही रहेगी। सो ई वेस्ट और हैजार्डियस वेस्ट को प्रॉपर हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। हमारी कंट्रीज में लोग अवेयर नहीं है। जिन जिन अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दे देते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो मटेरियल उनको यूजफुल रहता है उसको यूज करते, बाकी मटेरियल को वो उठा के लैंडफिल में भेज देंगे या आग लगा के जला देंगे। सो ये प्रोसेस स्पेशली हमारी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। यूरोपियन और यूएस और दूसरी कंट्रीज में वो लोग ई वेस्ट और दूसरे हैजार्डियस वेस्ट को प्रॉपरली हैंडल करती हैं। एक सिस्टमेटिक चैनलाइजेशन के थ्रू वो प्रॉपर रिसाइकलिंग यूनिट के पास जाता है। सो ये कंज्यूमर लेवल पे अभी अवेयरनेस नहीं है, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो हम लोग जनरली हैजार्डियस मटेरियल में डील नहीं करते, वो म्यूनिसिपैलिटीज के थ्रू ही लोगों के पास जाता है और फिर प्रॉपर रिसाइकलर के पास जाता है। Okay, sir. Thank you so much, sir. सर Anyone else? एक और जी जी सर। यस मैडम, मेरा एक छोटा सा वो था इसी क्या? सर ने जो कहा उसी के थोड़ा संदर्भ में। जी सर। सर प्लास्टिक वेस्ट का जो बताया था, ये मैंने दो एक जगह मतलब अभी एक कॉन्फ्रेंस में भी सुना था। लोगों का ये कहना था कि प्लास्टिक को हटाकर उसकी जगह पेपर या किसी और चीज का यूज किया जाए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि लाइफ साइकिल होती है हर चीज की। तो उनका ये कहना था कि यदि हम प्लास्टिक को हटा देंगे तो उसकी जगह हम पेपर यूज करेंगे, और पेपर का मतलब कंज्यूम जो करेंगे यदि, तो उसका ज्यादा हमें आगे जाके उसका हैजार्ड ज्यादा होंगे, ऐसा उनका कहना था। सर एक तो क्या है ना, पेपर जो होता है ना, वो पेपर जी जी बनता है लकड़ी से, पेड़ जी से। सर। सो अगर जितना भी जो पेपर भी हम आज कंज्यूम कर रहे हैं, वो अगर अगर वो रिसाइकल पेपर नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पेड़ को काट के बनाया जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है ना, प्लास्टिक का हम अगर पिछले 10 या 15 सालों का एनालिसिस देखें किसी भी रिसर्च पेपर में जाके या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, तो हम देखेंगे कि प्लास्टिक का यूज लगातार बढ़ रहा है। बिकॉज प्लास्टिक लोगों के लिए यूज करना आसान है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कई सारी चीजें ऐसी जो दूसरे मटेरियल्स के साथ पॉसिबल नहीं है। आप या मैं ही देखेंगे 10-20 साल पहले जब हमारे घर में बकेट होता था, वो लोहे का बकेट होता था या एल्यूमिनियम का बकेट होता था। बट आज आप किसी के घर में बहुत रेयरली है आपको लोहे और एल्यूमिनियम का बकेट मिलेगा। सो एक तो प्लास्टिक का खत्म होना ऑलमोस्ट अभी आज के सिनेरियो में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सबसे ज्यादा जरूरी है पेपर। कई जगह पेपर प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन सब जगह नहीं कर सकता है। और अभी कई नए कंपोनेंट पर रिसर्च चल रही है। जैसे आपने सुना होगा कि अभी केले के छिलके से फाइबर बनाया जा रहा है, जिससे प्लेट्स वगैरह बनने लगी है। और धान के और जो फसलों के जो कंपोनेंट है, उनको भी पाउडर बना के प्लेट्स और इन सब में कन्वर्ट किया जा रहा है। बट इससे कॉस्ट तो बढ़ी है, और वन टाइम प्लास्टिक खत्म हो जाएगी तो ये इनका रिसेल होने लगेगा। तो कुछ जगह तो प्लास्टिक को रिप्लेस किया जा रहा है। जैसे आजकल कई कई जगह बैग को रिप्लेस करके कंपोजेबल बैग्स आ गए, बट उनकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा है। तो कुछ जगह तो रिप्लेसमेंट हो गया, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक को
बैन कर दिया है। जैसे जैसे आप पानी की बोतल को देखते हो, तो जी। पानी की बोतल 70% 80% रिसाइकलिंग प्रोसेस में जाती है। आप आपके घर में जितना भी प्लास्टिक है, जो आपके घर में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, या तेल का पाउच है, तेल का पाउच नहीं सॉरी, तेल का जो बॉटल है प्लास्टिक का, वो सारे के सारे तो रिसाइकलिंग प्रोसेस में जाते हैं क्योंकि उनकी रिसाइकलिंग वैल्यू अच्छी है। बट जितना भी जो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो आपका पॉलीथीन है, जो आपका फ्रूटी और इनका टेट्रा पैक है, जो आपकी स्पून्स हैं, या जो आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए जो आपको पाइप यूज करते हैं, ये सारे मटेरियल्स, इनकी रिसाइकलिंग वैल्यूज या इनको कलेक्शन करना इतना क्रिटिकल होता है कि लोग इनको रिसाइकलिंग प्रोसेस में नहीं आ पाती। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा लैंडफिल में जाता है। सो गवर्नमेंट का पहला फोकस है कि जितना भी ये सिंगल यूज प्लास्टिक है या जो कम माइक्रोन का प्लास्टिक है, इस पे बैन लगाया जाए। इसके बाद आपने देखा होगा, अभी अभी गवर्नमेंट ने एक नया रूल पास किया है 2018-19 में। उस रूल के हिसाब से जितने भी कंपनीज है जो प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग यूज कर रही है, उन कंपनी को बोला गया है कि अल्टीमेटली इन इस मटेरियल की कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सपोज करिए पेप्सी ने मान लीजिए कि 100 टन ऑफ प्लास्टिक यूज किया पिछले साल 21-22 में अपनी कोल्ड ड्रिंक को पैकेजिंग करने में। सो इस साल कोको कोला को वो 100 टन ऑफ प्लास्टिक को कलेक्ट करके दिखाना पड़ेगा कि हमने इसको अलग अलग रिसोर्सेज से कलेक्ट करके इसको प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए चैनलाइज किया। सो काम हो रहा है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस होना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने लेवल पे सरकार काम कर रही है, बहुत सारे नियम बने हैं। बट अगर हम जैसे मैंने एक प्रैक्टिस की थी लॉकडाउन के आसपास, कि मैंने अपने घर में 3 बैग बनाए थे, एक रिसाइकलिंग के लिए, एक कंपोस्ट के लिए, और एक जो जो लो वैल्यू प्लास्टिक होता है, नॉन रिसाइक्लेबल जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमारे चिप्स के रैपर, जैसे हमारे दूध के बिस्किट के पाउच जो होते हैं, जो पॉलिथिन्स होते हैं। तो ये जो रैपर्स होते हैं, जो चॉकलेट के रैपर होती हैं, ये बहुत लो वैल्यू प्लास्टिक, तो ये रिसाइक्लेबल नहीं होती है। बट इसके लिए भी सॉल्यूशन है कि जितने भी सीमेंट प्लांट है या जितने भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, वहां पर ये इनको आप दे सकते हो, और वहां पर वो एक हाई टेम्परेचर पे इसको बर्न करके इसको कोयल के रिप्लेसमेंट में यूज करती है। तो गवर्नमेंट ने और दुनिया में सॉल्यूशंस हैं हर चीज की, बट जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसको चैनलाइज करने की। आप हम क्या करती हैं, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अगर इसको चैनलाइज कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है मेरे और आपके थ्रू। हमारे घर में हम क्या करते हैं, जितना भी कचरा होता है, ड्राई जी। वेट, वेस्ट वेट, प्लास्टिक वेस्ट, जी। जी। उसको मिक्स करते हैं। फिर गाड़ी वाला आता है, वो उसको मिक्स करता है, फिर वो नगर निगम के सेंटर में जाएगी, कॉम्पैक्टर में जाएगा, कॉम्पैक्टर उसको और प्रेस कर देगा, फिर वो लैंडफिल में जाएगा, और फिर लैंडफिल से गवर्नमेंट बोलेगी इसको सबको अलग अलग करना है। सो वहां पर प्रोसेस होता है, वहां पर कंपनीज, कई सारी कंपनीज को पैसा दिया जाता है कि आप इसको अलग अलग करके इसको लैंडफिल को खत्म करो। सो आपने देखा, जहां से स्टार्ट हुआ ना, वहीं पर जाकर एंड हुआ। जी सर। तो मेन सर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ने इसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल, हमारे जो कचरा लेने आता है नगर निगम का, वो जी बॉय ने बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था सर। उसने बताया था कि जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं, जो हम जैसे दूध की थैली काट लेते हैं, वो पीस होता है, ये होता है, ये जो पीसेज होते हैं, ये कलेक्शन में बड़ी दिक्कत आती है। तो जब मेरे बॉक्स में रखा हुआ था और वो जब कलेक्ट करने आया, तो उसने बोला भैया एक काम किया करो, ये जितने पीस है एक बॉटल लो और उसके अंदर डालते जाओ। तो जब ये रिसाइकल होगी आपकी ये बॉटल, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें भी बाद में कलेक्ट करके अलग अलग छोटे छोटे पीसेस को कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। वही एग्जैक्टली। ये बड़ा अच्छा आइडिया दिया था। और आज उसके बाद से आज आप ऑफिस में भी मेरे आओगे तो एक बोतल मिलेगी जहाँ छोटे छोटे से पीस, पाउच के इनके जो पीसेस होते हैं वो उसमें मैं डालता हूँ। और ऐसे छोटे छोटे घर में भी आपको हर जगह मिलेगी मेरे। ये हम लोग अच्छा। भी, हम जी लोग जी। जैसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ अभी काम कर रहे हैं। जी सर। जी सर। अब जैसे एलन सिटी कॉलेज के साथ, कैरियर कॉलेज के साथ, हमने इनको बोला है कि आप ना अपने कॉलेज में एक प्रैक्टिस करें कि जो फ्रूटी और टेट्रापैक सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक अगर कुछ है, तो वो ये जी फ्रूटी होता है। ये जो जितने भी अपना टेट्रापैक्स हैं, क्योंकि ये क्या 7 लेयर के होते हैं,
7 अच्छा, लेयर अच्छा। के होने की वजह से ये रिसाइकलिंग में इनमें दिक्कत आती है, इसके लिए स्पेशल यूनिट है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि हर मटेरियल के लिए स्पेशलाइजेशन है। हर मटेरियल अगर चैनलाइज हो जाए तो प्रॉपर रिसाइकलिंग की व्यवस्था है। सो हमने अभी क्या किया है कि कई सारे इंस्टीट्यूशंस में टेट्रा पैक के बॉक्स रखे हैं और बोला है कि आप अपना पानी का बॉटल और टेट्रा पैक, ये फ्रूटी और इनको आप इसमें डालिए, हम जब भर जाएगा तो हम उठवा लेंगे। बट फूड वेस्ट को आप मत डालिए। फूड वेस्ट को आप प्रॉपर, अगर हो सके तो कैंपस में बच्चों के साथ मिल के कोई रिसाइकलिंग कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करके कोई कंपोजेबल यूनिट लगा के और कर सकती हैं, क्योंकि सर रिसोर्सेस हैं, जगह है, बट थोड़ा अगर हर जगह ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, लोग सीखेंगे, तो अल्टीमेटली आने वाले टाइम में इस पे काम और अच्छा हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर हेलो। एक क्वेश्चन और है सर मेरा। हाँ बोलो बोलो। सर एक तो सर हम ई व्हीकल की बात कर रहे हैं आजकल, ई व्हीकल। हाँ, तो उसमें सर बैटरी के डिस्पोजल के लिए क्या मैकेनिज्म है? एक दूसरा, हर 1 साल में 2 साल में हमारे मोबाइल आउटडेटेड हो जा रहे हैं, तो हर घर में जैसे जनरली बात करें तो 5-5 6-6 मोबाइल एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं। वो एक्सचेंजेस में भी नहीं जा रहा क्योंकि उनके कहीं स्क्रीन फूटी हुई है या कहीं कुछ है, तो वो एक्सचेंज या रिप्लेसमेंट में भी नहीं जा रहा है। तो इस टाइप के वेस्टेज मटेरियल, एक तो मोबाइल फोन और दूसरा बैटरीज के लिए क्या प्लानिंग है सर अपने पास? देखो यार, बैटरी भी रिसाइकिल होता है और ई वेस्ट जो मैंने बताया, मोबाइल भी ई वेस्ट ही होता है। तो मोबाइल को जब प्रोसेस किया जाता है, जनरली क्या होता है, कई सारे ई वेस्ट कैसे प्लांट होते हैं, अगर आप उसमें अपने ई वेस्ट को डाल देंगे ना, तो पूरा का पूरा मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके ना एंड पूरा पूरा मटेरियल क्लीन कर देते हैं। उसमें से गोल्ड एक्सट्रैक्शन होता है, उसमें से सिल्वर एक्सट्रैक्शन होता है। सो मैंने बोला कि किसी भी चीज की रिसाइकलिंग की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होता है उसका चैनलाइजेशन के साथ कलेक्शन होना और उसको प्रॉपर जहाँ रिसाइकलिंग उस यूनिट तक पहुंचना। आपने देखा होगा, आप अपने घर में कंप्यूटर का जो वेस्ट होता है उसमें उसको किसी को देते हो ना, तो उसमें रैम होती है। रैम पूरे पहले के सिस्टम्स में और अब के सिस्टम में रैम में बहुत सारा गोल्ड निकलता है। अगर मैं 1000 रैम को एक मटेरियल एक्सट्रैक्शन करने जाऊं तो 1 ग्राम या 2 ग्राम तक गोल्ड निकल सकता है। सो इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस है, जो रिसाइकलिंग प्लांट होता है उसमें इसको हैंडल करने का एक जनरलाइज प्रोसेस होता है, बट वो बहुत कॉस्टली होता है। तो वो करोड़ ऑफ में ई वेस्ट का रिसाइकलिंग प्लांट लगता है, तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं करता। बट जो रिसाइकलिंग प्लांट होता है उनकी खुद की इतनी नीड होती है कि आप हजारों टन का ई वेस्ट को वो प्रोसेस कर सकते हैं पर डे। सो जैसे बैटरी वेस्ट का आपने बोला, आने वाले टाइम में बैटरी अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में जनरेट होने वाली, क्योंकि आने वाला टाइम में ई वेस्ट और बैटरी वेस्ट पे बहुत काम होने वाला है। तो पैरेलली जब ये चीजें आती तो जैसे लिथियम आयन बैटरी का रिसाइकलिंग आसान है और उतना हार्मफुल नहीं है जितना कि लेड एसिड बैटरी का रिसाइकिल करना है। सो ये सब पैरेलली चल रहा है, इसकी यूनिट्स है इंडिया में और बाहर भी कंट्रीज में ये वेस्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बस इसका चैनलाइज करना, इसका कलेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनी कहीं से भी उठाने जाएगी तो वो थोड़े से मटेरियल के लिए तो कोई उठा नहीं सकता है। तो इसका चैनलाइज होना जरूरी है और कलेक्शन पार्ट पे, इसलिए हमने अपना जो कंसंट्रेशन बनाए रखा वो हमने कलेक्शन पार्ट पे काम किया, क्योंकि कलेक्शन होना और कलेक्शन का चैनलाइज होना जरूरी है। रिसाइकलिंग होना, उसको रिसाइकल करके उससे मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना, वो प्रॉब्लम नहीं है। एक एक रिसाइकलिंग यूनिट की इतनी कैपेसिटी होती है कि हजारों टन ऑफ वेस्ट को वो रिसाइकल कर सकते हो। उनके पास अंडर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। हेलो, Anyone else? सर एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलो। सर जनरली कबाड़ी जो वर्क है सर, सेग्रीगेशन का, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। जितने जो लेबर हैं जो ये वेस्ट वगैरह जो कलेक्ट करते हैं वो सारे अनऑर्गेनाइज हैं या स्किल्ड नहीं है। तो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो वेस्टिंग मटेरियल ले रहे हैं घरों से, तो वो क्या सारे स्किल्ड मैन पावर रहती है अपने पास क्या सर? देखो, दो चीजें बोली तुमने। वो अनऑर्गेनाइज जरूरी है, लेकिन उनके पास स्किल है। जो लोग आज तुम जिनको कलेक्शन वालों को देख रहे हो ना, उनमें से 70% लोग ना बचपन से या बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं।
सो दे आर स्किल, उनके पास ये स्किल है कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मटेरियल कौन से प्लास्टिक का और उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, उनको एग्जैक्ट उसका कोड नेम नहीं पता होगा, लेकिन उनको ये पता है कि कितने रुपए में बिकेगा। सो दे, उनको नॉलेज है और वो सेग्रीगेशन कर सकते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड है, ये जरूरी चीज है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिससे वो जिसे यूज करके वो यूटिलाइज कर सके। और दूसरी बात है कि पूरे के पूरे वेस्ट सेक्टर में ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज ना किसी को, आज आपको पता नहीं होगा कि इस चीज का रेट क्या होगा किसी मटेरियल का, क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से आप उसके रेट को जस्टिफाई कर सको। कोई इसकी मंडी नहीं होती है। एमएस को छोड़ के, मेटल को छोड़ के, प्लास्टिक और दूसरे वेस्ट के लोगों को अपने प्लास्टिक का ही नहीं पता होता है कि वो कौन सा है, तो उसका रेट कैसे पता करेंगे। सो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बहुत सारे जो आप बोल रहे हो कि जो कबाड़ी है वो अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, उनको भी बहुत सारे वेस्ट का नॉलेज नहीं है। सो ये प्रॉब्लम है। बट धीरे धीरे इसका सॉल्यूशन, इसको ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जा रहा है इस क्षेत्र में। कई सारे कंपनीज एआई बेस्ड मशीन बना रही है जो प्लास्टिक टू सेग्रीगेशन में काम करेगी। तो आने वाले 2-5 सालों में बड़े लेवल पे इस पे काम हो जाएगा। कि अभी आपने देखा होगा इंदौर में या भोपाल में जो पुराना ट्रेंचिंग ग्राउंड था वो खत्म हो चुकी है। मतलब पिछले 20-50 सालों का जो वेस्ट था ना, वो खत्म किया जा चुका है। उस पर जितना भी मटेरियल निकला उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके खत्म कर दिया गया। सो टेक्नोलॉजी आ रही है, और आने वाले अगले 5 सालों में दिल्ली या किसी भी देश का पुराना कोई भी ट्रेंचिंग ग्राउंड बचेगा नहीं, पूरा वेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन जो रेगुलर वेस्ट जनरेट हो रहा है वो बहुत बढ़ गया। भोपाल में, अकेले भोपाल में डेली का जो वेस्ट जनरेशन है वो 400 टन है। हेलो जी सर। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं सूरज गावंडे बोल रहा हूँ। जी सर। मुझे थोड़ा छोटा सा एक डाउट था। बताइए सर। सर, किसी को अगर एग्रीकल्चर बेस्ड में प्रोजेक्ट करना है, जी। एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट, हाँ। तो उसको कैपिटल अमाउंट की आवश्यकता है। अब वहाँ पे एक डीआईसी होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, जिला उद्योग केंद्र। जी। दूसरा होता है खादी ग्रामोद्योग, जी। खादी ग्रामोद्योग। अब उसमें जब जाता है प्रोजेक्ट तो वो बैंक की तरफ भेजता है, तो बैंक वो अमाउंट देने के लिए तैयार नहीं रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर देखिए क्या होता है ना, केवीआईसी में या आप इसमें एग्रीकल्चर में कोई प्रोजेक्ट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री, ये लोग जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग सब्सिडी देती है। फंड तो बैंक ही देता है, तो इनका काम आपको सब्सिडी देने का है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम क्या होता है, कई सारे बैंक प्रोजेक्ट में, जब जब कोई प्रोजेक्ट लगाता है ना, तो वो मतलब जीरो स्टार्टिंग के पहले ही उसको प्रोजेक्ट तो लोन के लिए लगाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें अपने को थोड़ा, अपने प्लान को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना है, बैंक को, कोई भी बैंक जब लोन देता है तो वो ये देखता है कि रिकवरी का क्या है। ठीक है, वो जैसे एजेंसी एजेंसी हमको सब्सिडी दे रही है, केवीआईसी कोई भी, बट बैंक सब्सिडी तो बैंक के पास जाती है, लेकिन बैंक को ये भी देखना है कि ना, कि जो उसका सब्सिडी के अलावा जो अमाउंट है वो सामने वाले की क्या पोजीशन है। वो बैंक अपने अपनी पोजीशन देख के काम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा स्ट्रांग होगा, अगर हमने कुछ होमवर्क किया हुआ है या 1 आध साल 2 साल थोड़ा सा काम किया हुआ है अपनी पूंजी लगा के, तो बैंक को भी भरोसा होता है कि नहीं, इसने काम किया हुआ है, इसने यहाँ तक ले आया है, प्रॉफिटेबल बिजनेस, इसको आगे लेके जा सकता है इजीली। नहीं सर, खादी खादी ग्रामोद्योग से पास हो चुका है प्रोजेक्ट, हाँ। परंतु लेकिन जो बैंक वाले हैं जी। वो बैंक देने के लिए मतलब थोड़ा ये कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। तो उसके लिए जो इन्वेस्टर है उसने जी क्या करना चाहिए? सर, इस केस में तो बैंक को ही बैंक से बात करनी पड़ेगी कि क्या इश्यू आ रहा है उनको। क्योंकि उनको वो 2-3 केस में मना कर सकते हैं, या तो हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन में कहीं कोई दिक्कत हो, क्योंकि ये कोलेटरल, विदाउट कोलेटरल लोन होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन का कुछ इशू हो सकता है, या
जब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर से जब पास हो चुका है तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंटेशन देखे होंगे। नहीं सर, जो DIC होता है ना, वो केवल आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है सब्सिडी के लिए। लोन देना बैंक का काम है कि लोन आपको पास करना है कि नहीं करना है, क्योंकि सब्सिडी तो DIC क्या देगा आपको, केवल सब्सिडी आपकी बैंक को देगा, बाकी सारा का सारा पैसा तो आपको बैंक को ही देना है ना। तो बैंक को वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे केस में हमें बैंक हमने जब शुरू में काम किया तो हम लॉस मेकिंग बिजनेस था हमारा, जो बुक्स थे उसमें लॉस था, तो हमें किसी भी बैंक ने हमें लोन नहीं दिया, क्योंकि वो बैंक देखता है डॉक्यूमेंटेशन। और जब हम स्टार्टअप की तरफ जाते हैं तो स्टार्टअप शुरू में स्टार्टअप में लॉस ही होता है, ठीक है। तो जो आपके बुक्स होती हैं, जो आपके पेपर होते हैं, उसमें आपको कैश फ्लो लॉस नेगेटिव में दिखता है। तो बैंक अपना ये देखता है कि आपको पैसा वापस मिलेगा कि नहीं। सर अगर एजेंसी द्वारा जाते हैं अपन तो एजेंसी तो देने के लिए तैयार रहती है। सर एजेंसी उनके कुछ टर्म्स रहते हैं। एजेंसी केवल आपको सर सब्सिडी दे रही है, और वो बैंक को सब्सिडी देता है कि भाई ये सब्सिडी आप कस्टमर के यहाँ पे आप मुझसे सब्सिडी अमाउंट ले सकते हो। वो भी कब देता है, जब आपका लोन खत्म होता है लास्ट में, ठीक है। लेकिन मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पता नहीं आपका क्या केस है, बट मैं एक जनरलाइज पॉइंट रख रहा हूँ कि बैंक मेरे को भी इस बहुत प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग किसी को अगर वर्टिकल फार्मिंग या हॉरिजॉन्टल फार्मिंग करना है, उसके लिए उसकी जरूरत है। तो मैं कोई सर भी इन्वेस्टर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सर इनिशियली आपको थोड़ा टाइम के लिए सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट स्मॉल लेवल पे रन करना चाहिए, और फिर बैंक को अप्रोच करना चाहिए। उसमें थोड़ा बड़ा फंड नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे मुद्रा योजना के तरफ हम जाते हैं, मुद्रा योजना में 5 लाख तक का फंडिंग कर देता है, उसमें इतना दिक्कत नहीं होता है। बट हम कोई बड़ा लोन लेने जाते हैं तब बैंक थोड़ा दिक्कत करता है। अगर बैंक लोन छोटा होता है तो बैंक इजीली लोन दे देता है। तो अगर हम इनिशियली अपनी अपने अपने प्रोजेक्ट को कुछ सेल्फ फाइनेंस करें और कुछ बैंक से लोन लें, और अपनी बुक्स में उसको प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी के साथ उसको दिखाएंगे, तो फिर हमें धीरे धीरे हमें बैंक से भी फैसिलिटीज मिलेंगी, लोन मिलेगा। क्योंकि बैंक आपको बोलेगा आप कोलेट्रल दे दो, जी जी ठीक है। तो कोलेट्रल वो आपके पास कोलेट्रल नहीं है तभी बैंक लोन में डाउट करता है। वो ये बोलेगा कि पहले जब आप खुद अपना पूंजी नहीं फंसाना चाहते हो तो हम क्यों अपना पैसा फंसाएं आपको। जी तो वो बैंक का इश्यू होता है, बट उसका सॉल्यूशन यही है सर कि जितने भी लोग बैठे बच्चे, मैं उनको ये बोलूँगा कि पहले थोड़ा सा प्रोजेक्ट को इनिशियली सेल्फ फाइनेंस के साथ शुरू करें, अपना कैपिटल लगाएं, उसको एक बेसिक लेवल पे लेके आए, और फिर लोन्स या दूसरे फंडिंग की तरफ जाएं। आजकल कई सारे लोग सोचते हैं कि फंडिंग मिल जाएगी, आसान है। फंडिंग इतनी आसानी से नहीं मिलती है जब तक कि सामने वाले को ये भरोसा नहीं होता कि आने वाले टाइम में उसका पैसा आप रिफंड हो जाए। चाहे थैंक वो यू सर। जी Anyone else? सर एक मेरा क्वेश्चन है, जी मैम आपका म्यूट करें। हाँ सर मैं ये जानना चाह रहा था आपकी ओर से सर, ये अवेयरनेस प्रोग्राम कोई चलाते हैं आप इंस्टीट्यूट वगैरह में? बिल्कुल सर, हम लोग का एक रिलेटेड। और सर एक और इसी में क्वेश्चन में जुड़ा हुआ है, अगर हम जैसे आपने कहा था कि फूड से रिलेटेड फूडिंग जो मटेरियल है उसको अगर बच्चे चाहते हैं कि यूनिट स्थापित करें इंस्टीट्यूट में, तो अगर सर हम इंटरेस्टेड हैं तो उसमें सर आप हमारी हेल्प करें और उसमें अगर प्रोसेस बता पाएं कि कैसे क्या आगे हम बढ़ सकते हैं। सर दोनों काम करते हैं। मेरी एक डेडिकेटेड टीम है जी सर, जो अवेयरनेस और प्लास्टिक वेस्ट पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग इंस्टीट्यूशंस को पूरा गाइड करते हैं, और हम कुछ वॉलंटियर्स को साथ लेके काम कर सकती हैं। और कंपोस्टिंग यूनिट के लिए भी मेरे पास एक्सपर्ट हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। जो भी जिसको भी नीड होती है वो कंपोस्टिंग के लिए जिसको काम करना होता है, तो वो पूरा गाइड करेंगे, कंपोस्टिंग यूनिट बना सकती है हमें। और मैं हेलो Yes, sir. तो हम सर दोनों काम कर सकते हैं। मैं अपनी टीम को कनेक्ट कर दूंगा आपके साथ। जी सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर। Thank you so much. It was really a wonderful interaction with you, sir. It's you. pleasure to have you here.
Now I would like to request Dr. Namish Mehta sir, Dean Academics, Bhabha University, for vote of thanks. Hello. Good afternoon. In short, on behalf of Institute, I extend my gratitude to our Honorable Speaker, Mr. Kavindra Raghuvanshi sir, to take out time from his busy schedule. Thank you, sir, for inspiring and encourage us with your journey. Your work is really valuable for society. Time to time, our team coordinate with you. Special thanks to VC sir, Registrar sir, Jhala sir, Amrita madam, and our team. Finally, thanks to students. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you all the participants, all the delegates, Kavindra sir, Dr. Namish sir, Principal, RKDF College of Engineering. Thank you so much. Thank you everyone. Hello. I would like to request all the participants to fill the feedback link which is being shared in chat box so that we can give each certificate to all the participants.